Welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 007, that is International Trade and Finance. Important question. Critically discuss the Ricardian theory of comparative advantage. How is it different from Adam Smith theory of absolute advantage? So Ricardian theory of comparative advantage 1817. According to law of comparative advantage, even if one nation is less efficient than other, that is has absolute disadvantage with respect to the other nation in production of both the commodities, there is still a basis for mutually beneficial trade. The first nation should specialize in production and exports of the commodity in which it has absolute disadvantage is smaller, that is the commodity of its comparative advantage, and import the commodity in which its absolute disadvantage is greater, that is the commodity ऑफ इट्स कंपैरेटिव डिसएडवांटेज. तो बेसिकली क्या कहता है कि अगर एक नेशन की एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो दोनों ही गुड्स में, लेकिन तब भी वो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड कर सकते हैं. कैसे? वो नेशन प्रोडक्ट स्पेशलाइज करे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में उस कमोडिटी की जिनमें उनकी एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम हो, दैट इज़ उनकी वहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज हो, और इंपोर्ट वो गुड करे जिसमें उनकी जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज़्यादा हो, दैट इज़ उनकी कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हो. नाउ द अजम्पशन ऑफ द थ्योरी, पहले तो 2 कंट्रीज 2 गुड्स एंड 1 फैक्टर है जिसमें लेबर है. ठीक है, तो देर आर ओनली 2 कंट्रीज से ए एंड बी, दे प्रोड्यूस सेम 2 commodities x and y, taste are similar in both countries, labor is the only factor of production, prices of 2 commodities are determined by labor cost, that is the number of labor units employed in to produce each good, commodities are produced under law of constant cost or returns, there is free trade between 2 countries. देखो, there is free trade between 2 countries, that is there is no trade barriers or restriction in movement of goods, no transportation cost, the international market is perfect so that the exchange ratio of 2 commodities is the same, that is labor is homogeneous. उसके बाद there is perfect competition and full employment equilibrium, फिर है cost or price of commodity inferred exclusive from its labor cost, that is labor theory of value. उसके बाद है factors of production are perfectly mobile within each country but are perfectly immobile between countries. Now according to Ricardo, the comparative difference in the cost is the key to international specialization and international trade. तो comparative difference cost में एक की है किसके लिए? specialization के लिए, international और trade के लिए. He advocates that a country may be in a position to produce both goods at an absolute lower cost than the other country, yet it has greater comparative advantage in production of one good than the other. The Ricardo theory of comparative advantage can be further explained with the help of an example. Suppose there are 2 countries, England and Portugal, and both produces 2 goods, wine and cloth. So यहाँ पे लिखा units of प्रोड्यूस्ड बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर. तो एक यूनिट ऑफ लेबर से कितने गुड्स प्रोड्यूस होते हैं? देखो, इंग्लैंड प्रोड्यूस करती है 120 लीटर्स ऑफ वाइन, वेर एज पोर्टुगल करती है 80 लीटर्स ऑफ वाइन, वेर एज इंग्लैंड क्लॉथ प्रोड्यूस करती है 100 यार्ड एंड पोर्टुगल करती है 90. तो अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों गुड्स में, वाइन में भी और क्लॉथ में भी. तो ये लिखा देखो, इंग्लैंड हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ वाइन एंड क्लॉथ एज इट प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ क्लॉथ एंड वाइन यूजिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर. We know wine production in England divided by wine production in Portugal is greater than 1, एंड ठीक है, तो 120/80 इज ग्रेटर देन 1, विच ऑल्सो क्लॉथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंग्लैंड डिवाइड बाई क्लॉथ ऑफ प्रोडक्शन इन पोर्टुगल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, दैट इज़ 1.5 इज ग्रेटर देन 1.11 इज ग्रेटर देन 1. सो अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें तो इंग्लैंड की ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज किस में? प्रोडक्शन ऑफ वाइन में. अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इंग्लैंड हैज़ मोर कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन एज 1.5 इज क्वाइट फार फ्रॉम 1, whereas in terms of cloth production England has lesser comparative advantage as 1.1 is not very far from 1. Similar exercise can be done for Portugal to know comparative disadvantage and lesser comparative disadvantages. So more or less देखेंगे comparative disadvantage, तो wine production in Portugal divided by wine production in England is less than 1, and similarly cloth production in Portugal and cloth production in England is also less than 1. So लेकिन वाइन प्रोडक्शन पोर्टुगल की रेशियो आ रहा है 0.66 और उसके बाद 0.9 विच इज़ 1. तो पोर्टुगल की लेसर कंपैरेटिव डिसएडवांटेज कहाँ है? देखो, मतलब उसकी लेसर कंपैरेटिव डिसएडवांटेज क्लॉथ में है देन वाइन, क्योंकि देखो उसको 0.9 प्रोड्यूस कर रहा है तो थोड़ा नियर है 1 से, तो इसीलिए डिसएडवांटेज कम है यहाँ पे कंपैरेटिव, वेर एज वाइन में उसकी कंपैरेटिव डिसएडवांटेज ज़्यादा है. तो पोर्टुगल फोकस करेगा इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, वेर एज इंग्लैंड फोकस करेगा इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन.
हमने पीपीएफ ड्रॉ कर लिया। देखो इंग्लैंड और उसका पोर्टुगल का, देखो इंग्लैंड 120 वाइन प्रोड्यूस करेगा या फिर 100 क्लॉथ प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली पोर्टुगल 80 वाइन प्रोड्यूस करेगा या फिर 90 क्लॉथ प्रोड्यूस करेगा। तो इंग्लैंड क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा वाइन टू पोर्टुगल, और पोर्टुगल क्या करेगा, एक्सपोर्ट क्लॉथ टू इंग्लैंड। नाउ गेन्स फ्रॉम ट्रेड यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये देखो यूनिट्स प्रोड्यूस बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, इंग्लैंड 120 लीटर वाइन प्रोड्यूस कर सकता है और 100 क्लॉथ, या फिर ठीक है ना, और पोर्टुगल 80 यूनिट्स ऑफ वाइन या फिर 90 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ यार। तो 1 यूनिट ऑफ वाइन कितने इक्वल है, 0.83 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, और इधर 1 यूनिट ऑफ वाइन कितनी इक्वल है, 1.125 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। तो जो हमने वैल्यू निकाली, देखो यहाँ 0 1 लिख दिया वाइन का। यहाँ देखो वाइन अगर एक है तो उसके अकॉर्डिंग 0.83 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ है, और इंग्लैंड के लिए और पोर्टुगल के लिए 1.125। तो क्लियरली अगर इंग्लैंड वांट टू एंटर इनटू ट्रेड देन इट वुड गेन इफ इट रिसीव्स मोर देन 0.3 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। अगर उसको 0.3 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ से ज़्यादा मिलेगा तभी वो ट्रेड में एंटर करेगी। सिमिलरली पोर्टुगल एंटर करना चाहेगी ट्रेड में अगर उन्हें लेस देन, इफ इट रिसीव्स लेस देन 1.125 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ फॉर 1 यूनिट ऑफ वाइन। द थ्योरी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो अभी दूसरे तरीके से भी हो सकता है। ये है लेबर यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। वो था कि एक यूनिट में कितने प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कितने लेबर आर लगेंगे एक गुड प्रोड्यूस करने के। तो दोनों परस्पेक्टिव से कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी सेम वैल्यू सेम है, 120 100 80 90, बट ये लेबर डेज है कि एक वाइन को प्रोड्यूस करने के लिए 120 लेबर डेज लगेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ वाइन भी निकाल लिया, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ का निकाल लिया, 1 यूनिट ऑफ वाइन निकाल लिया। तो क्लॉथ के लिए देखो 100 क्लॉथ डिवाइडेड बाय वाइन एंड सिमिलरली क्लॉथ डिवाइड बाय वाइन, और अगर 1 यूनिट ऑफ वाइन निकालना है तो वाइन डिवाइड बाय क्लॉथ। इसमें देखिए तो पोर्टुगल को एब्सोल्यूट एडवांटेज है बोथ वाइन और क्लॉथ में, क्योंकि यहाँ पे कम लेबर डेज में ज़्यादा एक प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे पोर्टुगल में हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल वैल्यूज़ बदल दिए तो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। एज इट प्रोड्यूस बोथ गुड्स यूजिंग लेसर लेबर इनपुट, क्योंकि यहाँ पे इनपुट्स की बात करें तो पहले केस में हमने लिया था कि कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इधर हम ले रहे हैं कि कितने लेबर डेज में एक यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखा जाए तो ये 80 डेज में प्रोड्यूस करा वो 120 में, तो पोर्टुगल बेटर है। यहाँ वो 90 डेज में एक गुड क्लॉथ प्रोड्यूस करेगा वो 100 डेज में, तो पोर्टुगल दोनों में ही बेटर है। तो पोर्टुगल की कंपैरेटिव एडवांटेज दोनों में है, लेकिन पोर्टुगल की ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज वाइन में है, वाइल इंग्लैंड हैज़ अ लेसर कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन क्लॉथ। तो पोर्टुगल क्या करेगा, इधर एक्सपोर्ट करेगा वाइन टू इंग्लैंड और इंग्लैंड एक्सपोर्ट करेगी क्लॉथ को। तो ये पर्सपेक्टिव ही चेंज होगा। तो अब यहाँ देखो मैंने नोट भी लिखा है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर द डेटा इज गिवन एज आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, जो पहले का पार्ट था जिसमें कि कितने आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं 1 यूनिट ऑफ लेबर में, या फिर जो सेकंड पार्ट है कि लेबर यूनिट रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वाइन और क्लॉथ टू डिटरमाइन कंपैरेटिव। यहाँ पे हमने देखा ना कितनी लेबर लगेगी 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। पहले तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन है ऑफ लेबर कॉस्ट। मोस्ट critical criticism is based on labor theory of value. While calculating production cost only labor cost are considered, इसमें सिर्फ labor cost consider किया है while neglecting non labor cost। तो बाकी non labor cost जो कि निगलेक्ट किया, जो कि रियल नहीं है। क्यों, क्योंकि मनी कॉस्ट भी होती है, सिर्फ लेबर कॉस्ट ही नहीं होती है। लाइक क्योंकि मनी कॉस्ट होती है ना कि लेबर कॉस्ट, जो बेसिस होती है नेशनल इनकम एंड नेशनल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे। ठीक है, ऑल्सो लेबर कॉस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumption of homogeneous labor which is again unrealistic। नेक्स्ट है dissimilar taste, since countries with different income have different taste। उसके बाद वन साइड थ्योरी। रिगार्डिंग थ्योरी इज वन साइड बिकॉज इट कंसिडर ओनली सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और डिमांड साइड को निगलेक्ट करती है। फोर्थ है इग्नोर करती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। फिफ्थ है निगलेक्ट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। This theory neglects the role of technology, which is unrealistic as technological changes help in increasing the supply of goods for both domestic market and international market. World trade has gained much from innovations and research and development. Sixth, the mobility of factors. The theory assumes that factors of production are perfectly mobile internally and wholly immobile internationally. This is not realistic, as within the country also migration and mobility is limited. Now we'll compare Adam Smith theory of absolute advantage with Ricardo theory of comparative advantage. So according absolute advantage, according to this, the basis of international trade is absolute cost advantage, whereas Ricardian theory of comparative advantage, the basis of trade is comparative cost difference. Adam Smith theory of absolute advantage, trade between two countries would be mutually beneficial when one country produces a commodity at an absolute cost advantage. इधर बोलता है Ricardian theory of comparative advantage, trade can take place if absolute cost difference is absent बट देयर इज़ कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस एब्सेंट भी हो तब भी ट्रेड बेनिफिशियल होगा और कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस हो। सो thank you guys, do like, share and subscribe my channel and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.